वेलकम एवरीबडी वंस अगेन। एक नई सुबह, नया आगाज और एक नए अध्याय के साथ मैं राजेश सर आप सभी का लेकर के हाजिर हूँ। +2 स्टैंडर्ड सेकेंड लेसन लॉस्ट समथिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू overall the writer tells us about the condition of child labor, about the plight of children of the poor community, those who haven't a complete resources for making their livelihood. And another one thing, in this lesson the writer has divided it into two parts, and I will explain separately. First part for the rag pickers, and second part the miserable condition of the bangle makers in the town of Firozabad. And the another most important point, just want to tell you, in the rag pickers there is the character Sahib-e Alam, and this story belong to Mukesh family. Mukesh has a dream. He himself said in this lesson, I want to drive a car. This is said by Mukesh in his own words. He has a willingness. He didn't agree to do the work of his ancestors, forefathers, or at that time the whole family was involved in the work of bangle making, but their condition was not good. And another one thing I just want to tell you, rag pickers, in this expression the writer tells us about the rag pickers, and especially the family of Sahib-e Alam, those who migrated from Bangladesh, into Simapuri area in Delhi. So this is all about the two families. First family related to Sahib-e Alam, those who migrated from Bangladesh in the Simapuri area in Delhi, because of the reason was that there was a flood in which their whole houses and animals swept away. So they migrated to the area which is in Delhi named Simapuri. And the another one, that is the Mukesh family. They supposed it was their destiny for working in the bangle making. So we will come to know about both these family through the explanation. The writer sees a boy named Sahib every morning in her neighborhood. साहिब नाम के एक लड़के को लेखिका हर प्रातः अपने पड़ोस में देखती है. The boy looks for some coins or other things in the garbage heaps. लड़का कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्के या दूसरी चीजें ढूंढ रहा होता है. One day the writer talks to the boy. एक दिन लेखिका लड़के से बात करती है. She comes to know, वह जानना चाहती है, उसे पता चलता है that these people have migrated from Bangladesh, कि लोग बांग्लादेश से आए हैं. Their fields and homes were swept away by storms. उनके खेत और घर तूफानों में बह गए. They had nothing to eat. उनके पास खाने को कुछ नहीं. So they came to the big city and started living there. इसलिए वो बड़े नगर में आ गए और वहाँ रहने लगे. The writer told Sahib that he should go to school. लेखिका ने साहिब से कहा कि उसे स्कूल जाना चाहिए. Sahib said that there was no school in their neighborhood. साहिब ने कह दिया कि उनके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था. At this, इस पर the writer said half jokingly, लेखिका ने मजाक भाव से, half jokingly means आधे मजाक भाव से कह दिया, if I start a school, यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं, will you come, तो क्या तुम आओगे. Sahib said that he would.
कि वह आएगा, बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन ए फ्यू डेज लेटर, लेकिन लेखिका को थोड़ा फील स्मॉल मीन्स लज्जित होना पड़ा जब कुछ दिन के पश्चात साहेब आस्क्ड हर, साहब ने उससे कहा, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। इनफैक्ट वास्तव में द राइटर हैड नेवर मेंट इट, लेखिका का ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। देयर वर अ नंबर ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहब की भांति वहां अनेकों कूड़े बीनने वाले थे, उठाने वाले थे। इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में, द राइटर केम टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम, लेखिका उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। दे वर ऑल बेयरफुट बॉयज, और वे सब नंगे पांव वाले लड़के थे। विद सम पीपल, कुछ लोगों में, इट इज आ ट्रेडिशन टू गो बेयरफुट, नंगे पांव घूमने की परंपरा थी। Perhaps they use it as an excuse to conceal their poverty, शायद वे इसे अपनी गरीबी को छिपाने के एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। The writer finds that all these barefoot rag pickers live in सीमापुरी, which is on the periphery of Delhi, और वो लड़के सीमापुरी में रहते हैं जो कि दिल्ली के क्षेत्र में है। When she goes there, और जब वो वहाँ जाती है, शी फाइंड्स, उसे पता चलता है, दीज पीपल केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, कि ये लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे। स्टार्टिंग लिविंग हियर इन सर्च ऑफ फूड, और इन्होंने भोजन की तलाश में यहाँ रहना शुरू कर दिया। देयर आर अबाउट 10,000 ऑफ देम, और वो रैग पिकर्स लगभग 10,000 की संख्या में है। दे लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टैरापोलिन, वे मिट्टी के बने ढांचों में रहते हैं जिनके ऊपर टिन और तिरपाल की छतें होती हैं। दे लिव हेयर विदाउट एनी फैसिलिटी ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वे यहाँ मलजल, नालियों और जल नल की बिना किसी सुविधा के रहते हैं। साहेब टेल्स द राइटर, साहेब लेखिका को बताता है, दैट समटाइम्स ही फाइंड्स ए रूपी, कि कई बार उसे कूड़े में 1 रुपया मिलता है, और इवन ए 10 रुपी नोट इन द गार्बेज, या कूड़े में 10 रुपये तक मिल जाता है। 10 फॉर चिल्ड्रन, इस प्रकार बच्चों के लिए गार्बेज बिकम्स समथिंग रैप्ड इन वंडर, कि कूड़ा आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज बन जाती है। फॉर द एल्डर्स, आयु में बड़े लोगों के लिए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनका मतलब एक जीवित रहने के साधन से होता है। वन विंटर मॉर्निंग, द राइटर सीज साहेब वॉचिंग ए गेम ऑफ टेनिस, एक सर्दी की सुबह, द राइटर देखता है साहब वॉचिंग ए गेम ऑफ टेनिस का खेल देख रहा है। साहब कहता है दैट ही लाइक्स दिस गेम, उसे ये गेम पसंद है। ही इज वेयरिंग टेनिस शूज डिस्कार्डेड मीन्स जो किसी के द्वारा गिव अप कर दिए गए होते हैं, छोड़ दिए गए होते हैं, टूटे हुए। सम रिच बॉय एंड गिवन टू हिम, कि उसने ये टेनिस के जो त्यागे हुए, छोड़े हुए जूते किसी अमीर लड़के के द्वारा उसे दिए गए हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु ये खेल उसकी पहुंच से बाहर है। साहेब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल, साहब जो है वो टी स्टॉल की एक दुकान पर काम करने लगता है। ही इज पेड 800 रुपीज एंड गिवन ऑल द मील, उसे 800 रुपये और हर बार का भोजन दिया जाता है। बट नाउ ही इज नॉट फ्री, किंतु अब वो आज़ाद नहीं है, अब वह आज़ाद नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब वह स्वयं अपना मालिक नहीं रहा। So this is the first part. As usual, the writer told us he has divided this lesson into 2 parts. Sahib Alam's family and Mukesh family. I have discussed about Sahib Alam's family in the form of first part. We'll discuss in the next video about Mukesh family. Till then, thank you very much and do your work properly. Do take very good care of yourself. Thank you.